Hey guys, welcome to the Hindu analysis. My name is Ritesh Agrawal and I'll take you through today's The Hindu. So let's check the top stories for today. Yeah, so BRICS meeting is underway and BRICS seek inclusive intra-Afghan dialogue. We'll talk about them. IIT's top centers rankings for 2021. Okay, another interesting update from the Ministry of Education. Ford to shut Chennai and Sanand plants. That's again a very important update in the world of business. Allow spying without nod, says Kerala bill. We'll talk about that. C-295 inductions is critical for Indian Air Force related to defense. Scindia sets target for 50 more Udan routes related to aviation. We'll talk about this. Railway board announces closure of green fuel wing. Okay. And then from the editorials, catching up. So these are the top stories from our perspective. Let's look at them one by one. So on front page, you will see this article, BRICS seeks inclusive intra-Afghan dialogue. Now, BRICS summit is underway. 13th BRICS summit is underway, chaired by India. Okay. BRICS involve 5 member countries, Brazil, Russia, India, China and South Africa. South Africa was added in 2010. This year, BRICS is celebrating its 15th anniversary and the summit is chaired by India. Okay. So, in the BRICS summit, the couple of important decisions have been taken. One thing is the adoption of BRICS counter-terrorism plan. Okay, BRICS counter-terrorism action plan, which is basically a coordinated movement of BRICS countries to prevent terror financing, to act against terrorists. Okay, which is kind of interesting. And then their dialogue on providing humanitarian assistance in Afghanistan, making sure that people are protected out there. Okay, so that is again one thing which was featured in the dialogue. Okay, so this year's declaration is titled as New Delhi Declaration. So as I told you, this is the 15th anniversary of BRICS and it is for the third time India is hosting the summit. Earlier India has hosted it in 2012 and 2016. Okay, the theme for the summit is intra-BRICS cooperation for continuity, consolidation and consensus. So these are some key facts related to BRICS summit. We will elaborate it further and I'm sure you will see more articles on BRICS summit in the coming days. Okay. IIT's top centers ranking for 2021. Okay. Now, National Institution Ranking Framework India Rankings 2021 has been released, which basically every year tells us about the best institutions in various areas. So this year we have collated the most important institutions in this particular screen. You can see that best higher education institution is IIT Madras. Okay, IIT Madras has been hogging this spot since last few years. Best university is Indian Institute of Science, Bengaluru. Best engineering institution is IIT Madras. Best management institution is IIM Ahmedabad. Best medical college is AIIMS Delhi. Best UG college is Miranda House, Delhi. Best pharmacy college is Jamia Hamdard, New Delhi. Best law college, NLU, Bengaluru. And best research institution is IISc Bengaluru. So this category of best research institution has been added for the first time. This is basically to promote research in the country. So just make sure that you make a note of these and remember these names. Okay, this is a big update on the front page. Ford has announced that enough of suffering losses. It has decided to shut down the manufacturing of vehicles in India. So no more vehicles will be manufactured for sale and it will shut down the plant at Sanand, Gujarat and Chennai shortly. Okay. So this will obviously impact jobs. About 4,000 jobs are on the line now and they've already suffered a loss of over $2 billion. Okay. So that's a very interesting update because if you look at US automobile companies, General Motor stopped their operations, then Harley Davidson announced the closure of their operations and now Ford is third in line. So clearly US companies are not finding it profitable to sell their vehicles in India. Okay. Now if you have a Ford car, what is the update for you? The last two lines. The auto major will continue full customer support operations for its vehicles with service
aftermarket parts and warranty coverage. So you don't need to worry. The company will continue to provide you its service and operational support for the existing vehicles. देखो केरला हाई कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिल पास किया है, ठीक है, पास नहीं किया, अभी प्रपोज किया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अलाउ स्पाइंग विदाउट नॉट। सो व्हाट दिस इज कि सीरियस क्राइम्स या किसी सीरियस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए पुलिस जो है वो कोई भी फोन टैप कर सकती है और उसके लिए उसको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इट सेज दैट पुलिस कैन इंटरसेप्ट एनी फोन एंड दे कैन आस्क फॉर परमिशन, ठीक है। 48 आवर्स का टाइमलाइन रहेगा, 48 आवर्स के अंदर या तो उनको परमिशन मिल जाएगी या फिर उनको अपना इंटरसेप्शन रोकना पड़ेगा। सो व्हाट दे से इज दैट इफ पुलिस फाइंड्स कि कुछ सीरियस मैटर है जिसके लिए प्रोब करना जरूरी है तो वो कोई भी फोन को इंटरसेप्ट कर सकता है। पुलिस कैन लिसन इन ऑन एनी कम्युनिकेशन विदाउट वेटिंग फॉर ऑफिशियल अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल का इंतजार नहीं करेंगे, दे कैन स्टार्ट टैपिंग एनी फोन, ठीक है, and they will ask for an approval for somebody who is senior than additional director general of police. So additional director general of police या उससे सीनियर किसी पुलिस ऑफिसर से they can ask for a permission within 48 hours. परमिशन मिल गई तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, परमिशन नहीं मिली तो they will have to immediately terminate the interception, ठीक है। या तो परमिशन ना मिले, 48 आवर्स में परमिशन नहीं मिले या फिर रिजेक्ट हो जाए, इन एनी केस they will have to terminate it, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बिल है। ये स्पेशली इसलिए भी ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है क्योंकि अभी पेगासस प्रोब पे ऑलरेडी बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो सर्वाइलेंस जो है वो काफ़ी हॉट टॉपिक ऑलरेडी बना हुआ है और ऐसे में केरला में ये बिल प्रपोज किया गया है, तो जरूर एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। C-295 इंडक्शन क्रिटिकल फॉर इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स में C-295 आने वाला है, ठीक है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का जो एग्जिस्टिंग एवरॉन्स हैं, ठीक है, वो अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उनको रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट डील की है स्पेन से, ये C-295 56 प्लेन्स आएंगे, 56 प्लेन्स स्पेन से आएंगे एंड दे विल रिप्लेस द एजिंग एवरॉन्स, ठीक है। तो एवरॉन्स को रिप्लेस किया जाएगा। एवरॉन्स हमने खरीदे थे 1960s में, ठीक है, सोचो 50 साल पुराने प्लेन्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है एंड फॉर दैट वी हैव साइंड अ डील विथ Spain to supply us 56 C-295 aircrafts from Airbus Defence and Space in Spain, ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है डील में, ऐसा नहीं है कि सारे प्लेन्स स्पेन से ही आएंगे, कुछ प्लेन्स स्पेन से आएंगे, ठीक है। 16 एयरक्राफ्ट जो है वो स्पेन से आएंगे और बाकी जो 40 एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर इंडिया में डेवलप होंगे बाय टाटा कंजोर्टियम, ठीक है। 40 विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय टाटा कंजोर्टियम। तो अपनी तरफ का पहला डील है जिसमें इंडिया में कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ फॉरेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस इनिशिएटिव इज इंपॉर्टेंट। डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, नाउ समथिंग फ्रॉम सिविल एविएशन। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने बताया है कुछ और इनिशिएटिव्स के आने वाले 3 महीनों में, आने वाले 100 डेज में इंडियन एविएशन में क्या होने वाला है। तो they work that 50 new routes in Udan will be opened up. Udan means उड़े देश का आम नागरिक, which is a regional connectivity scheme to connect smaller airports and increase the passenger traffic in these locations. तो यहाँ पर उड़े देश का आम नागरिक स्कीम में 50 नए रूट्स होंगे, यानी नए छोटी छोटी जगहों पे नए नए एयरपोर्ट्स भी खुलेंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होगा उत्तर प्रदेश में और जेवर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा अगेन उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा रैशनलाइजिंग द वैट चार्ज्ड ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो एरोप्लेन का फ्यूल होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उस पर जो वैट लगता है उसको भी रैशनलाइज किया जाएगा, उसे कम किया जाएगा। और उसके अलावा कुछ नई टर्मिनल बिल्डिंग्स पे काम चल रहा है देहरादून और अगरतला एयरपोर्ट में, वहाँ पे पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा एक MRO स्कीम, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन स्कीम के बारे में भी उन्होंने बात की कि हम इंडिया को MRO हब बनाएंगे, यानी दुनिया भर के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए इंडिया में आएंगे, उनकी मेंटेनेंस रिपेयर और ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा एयर सेवा 3 पोर्टल उन्होंने कहा सितंबर 30 तक आ जाएगा। एयर सेवा 3 पोर्टल के थ्रू एज अ एयरलाइन पैसेंजर आप अपने ग्रीवियंसेस सीनियर एयरलाइन ऑफिशियल्स तक पहुंचा पाएंगे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, अच्छा कुछ नए अनाउंसमेंट्स हैं। देखो कल अगर आपको याद हो, कल के हिंदू एनालिसिस में एक फ्रंट एडिटोरियल में एक आर्टिकल था ग्रीन हाइड्रोजन पे, और उस आर्टिकल को अपन ने कवर भी किया था और उस आर्टिकल में हमने बात की थी कि इंडियन रेलवेज जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं वो सोनीपत से जिंद के बीच में, जहां पर वो जो डीजल इंजन है उसके इंजन को रेट्रोफिट करके ग्रीन हाइड्रोजन से चलाने की बात कर रहे हैं।
ये इनिशिएटिव रेलवे के जिस पार्ट का था उस पार्ट को ही बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बड़ा शॉकिंग है, कल हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, आज उसके बारे में इस तरह की न्यूज़ आ गई, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। ये इंडियन रेलवेज की वो बॉडी थी जो रेलवेज में ग्रीन फ्यूल्स पे काम कर रही थी कि हम रेलवे को एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल से चला सकें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसके प्रोजेक्ट भी इसके साथ बंद हो गए, इसके प्रोजेक्ट शिफ्ट हो गए नॉर्दर्न रेलवेज और रेलवे बोर्ड के पास, यानी वो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चलते रहेंगे। उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स पे वो एंटर किया है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यूं के यूं हैं, सिर्फ ये बॉडी को बंद कर दिया गया है, ठीक है। सो IROF had invited bids last month in August for hydrogen fuel cell based trains to run on Sonipat Jind sector of Northern Railways। यही बात हम कर रहे थे। इसके अलावा it was also working on finding if CNG can act as a substitute for high speed diesel। तो कुछ इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स पे काम कर रही थी। इंडियन रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो वहाँ अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी इंश्योर कर सकते हैं तो दैट इज़ अ ह्यूज प्रोपोजिशन एंड अनफॉर्चुनेटली दिस विंग हैज़ बीन शट डाउन, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, आई एम श्योर इस पर भी कुछ आएगा। कैचिंग अप, देखो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कल टेक्सटाइल्स में PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस हुई थी, उस पर ये आर्टिकल आया है। वो एक बड़ा अपडेट था, मैंने आपको बताया था, एक हॉट इशू है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया है, ठीक है। कुछ बातें हमने कल भी की थी उस पर, और आज थोड़ी कुछ और इंसाइट्स उसमें देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि कल भी हमने बात की थी कि इंडिया जो है वो लार्जली टेक्सटाइल्स में कॉटन बेस्ड गुड्स पे डील कर रहा है और दुनिया कॉटन से आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। तो फैशन ट्रेंड्स और MMF यानी मैन मेड फैब्रिक सरपास कॉटन एज द फाइबर ऑफ चॉइस इन 1990s। तो 1990s ऑनवर्ड्स, ठीक है, लोग कॉटन के बजाय मैन मेड फाइबर्स प्रीफर करने लग गए थे, और आज की तारीख में पूरी दुनिया में 75% ट्रेड जो है ये MMF का होता है, मैन मेड फाइबर का। बट हिंदुस्तान में अभी भी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में मैन मेड फाइबर सिर्फ 30% है, बाकी 70% आज भी हम कॉटन डोमिनेटेड ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब दुनिया में किसी ने कॉटन चाहिए ही नहीं, बट हम कॉटन पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब जो ये स्कीम है, इस स्कीम में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए किन लाइंस में, कौन से प्रोडक्शन पे, 40 मैन मेड फाइबर अपैरल प्रोडक्ट लाइंस, 14 मैन मेड फाइबर फैब्रिक लाइंस, 10 सेगमेंट्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो जिन एरियाज में इंडिया लैक कर रहा है, जिन एरियाज में इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उन एरियाज में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए कि वहां अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन में पैसा लगाती है तो उनको वेरियस काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो 64 आइटम्स हैव बीन चूजन अमंग द टॉप ट्रेडेड लाइंस इन द ग्लोबल मार्केट। तो एक तो जहां पे ग्लोबल डिमांड है उन लाइंस को चुना गया है, और जहां पर इंडिया का शेयर 5% से ज्यादा कम है, यानी उन लाइंस को चुना है जिनमें इंडिया का शेयर 5% से कम है। यानी एक तो ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा है, दूसरा हम काफ़ी पीछे हैं, ऐसे एरियाज को ग्रोथ देने की ज़रूरत है। द इंक्लूजन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, दिस इज जस्ट अ सब्सिडरी लाइन। अच्छा, इंसेंटिव्स दो तरह के दिए गए, मैंने कल भी आपको बताया था। एक 300 करोड़ रुपए तक के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए गए। फर्म्स इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 300 करोड़ इनटू प्लांट एंड मशीनरी एंड हिटिंग अ मिनिमम टर्नओवर ऑफ 600 करोड़ will receive incentives in the first part, and if you are investing only 100 crores but still receiving getting a turnover of 200 crores will receive incentives under the second part, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बेनिफिट्स ऑफर किए गए हैं विच माइट सी अ रिसर्जेंस इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है। चलिए, ये थे अपडेट्स, आज के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। अब हम क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, इसी टेक्सटाइल्स रिलेटेड बात हो रही थी हमारी, तब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। आप में से कुछ लोगों ने जवाब दिया है, बड़ा अच्छा जवाब। इज द टेक्सटाइल्स मिनिस्टर ऑफ द यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स इज श्री पीयूष गोयल साहब, ठीक है। पीयूष गोयल जी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। ही इज़ ऑल्सो द कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर, ही इज़ ऑल्सो द फूड एंड कंजम्पशन मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि आज फोर्ड के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट आया कि फोर्ड इज शटिंग डाउन इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। तो मेरा क्वेश्चन है, हु इज द CEO ऑफ फोर्ड? ओके, आपको ये बताना हु इज द CEO, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ड, हु इज द चीफ ऑफ फोर्ड, ठीक है। तो आप ये जवाब अगेन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई विल सी टू इट एंड देन वी विल डिस्कस दिस टुमारो विद सम फ्रेश न्यूज स्टोरीज। टिल देन कीप रीडिंग, टेक केयर, गुड बाय।